Good morning, students. This is Civics, class 9th, chapter 1, What is democracy, why democracy, and this is going to be our third class on this chapter. हमने जाना कि दुनिया के अधिक से अधिक देश आज लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना रहे हैं, लेकिन जिन देशों में संविधान है और चुनाव होते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ पर लोकतंत्र हो। में परवेज मुशर्रफ ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, उसको हटा दिया और उसकी जगह खुद सैनिक शासन के रूप में स्थापित हो गया और बाद में वो प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लोकतंत्र है। में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की परमिशन के बगैर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई चुनाव नहीं जीत सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पे लोकतंत्र है। मैक्सिको में इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी की परमिशन के बगैर कोई पार्टी चुनाव में नहीं आ सकती, चुनाव नहीं जीत सकती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लोकतंत्र है। हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में जान रहे थे। तो डेमोक्रेसी की जो पहली विशेषता है वो है डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी निर्णय लेने की अंतिम शक्ति उनके पास है जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष और साफ स्पष्ट होने चाहिए और जो पावर में है, सत्ता में है जो पार्टी, उसको भी हारने का मौका मिले और जो पावर में नहीं है उसको भी जीतने का मौका मिले। Continue. One person, one vote, one value. In the previous chapter, we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. This principle has now come to be accepted almost all over the world, yet there are many instances of denial of equal right to vote. In Saudi Arabia, women don't have the right to vote. Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fiji. Democracy is based on a fundamental principle of political equality. This gives us the third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote, each vote must have one value. हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता की बात करते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि चुनाव में हर व्यक्ति एक वोट डालेगा और उसके जो वोट है, उसकी जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो उतनी ही होगी जितनी कोई और व्यक्ति वोट डालता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति धनी है, पावरफुल है, उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा और एक व्यक्ति गरीब है, अनएडुकेटेड है, अशिक्षित है, तो उसके वोट की वैल्यू कम होगी। उदाहरण के लिए सऊदी अरेबिया में जो औरतें हैं उनको वोट का अधिकार नहीं है। इस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी है, जो रशियन अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको वोट का अधिकार आसानी से नहीं दिया गया। फिजी में हम क्या देखते हैं कि जो फिजी के लोग हैं, फिजियन हैं, उनके तो वोट की वैल्यू ज़्यादा है, जबकि जो बाहर के हैं जैसे इंडियन फिजियन है, उनके वोट की वैल्यू कम है। Continue. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980, यानी 20वीं शताब्दी के 8वें दशक। Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. Its leader Robert Mugabe has been ruling the country since independence. Elections have been held regularly and always won by ZANU-PF. President Mugabe is popular but also uses unfair practices in elections. Over the years, his government has changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. Opposition party workers are harassed and their meeting disrupted. Public protests
and demonstrations against the government are declared illegal. There is a law that limits the right to criticize the president. Television and radio are controlled by the government and give only the ruling party's version. There are papers, but the government harasses those journalists who go against it. The government has ignored some court judgments that went against it and has pressurized judges. हम जिम्बाब्वे का उदाहरण लें तो हम पाएंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिम्बाब्वे में जानु पीएफ पार्टी का बोलबाला रहा है और उसी की जो बात है वो मानी जाती है। राष्ट्रपति को जनता के प्रति अकाउंटेबल कम ठहराया गया है और जो मीडिया है जो सरकार की आलोचना कर सकता है उस पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। और इतना ही नहीं, जो जुडिशरी है, लोकतंत्र में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत आवश्यक है। उसकी जो न्यायिक व्यवस्था है, जो निर्णय है, उनका भी उल्लंघन किया गया है। इस तरह से द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ democracy, but it is not sufficient. Popular governments can be undemocratic. Popular leaders can be autocratic. If we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections, but it is equally important to look before and after the elections. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition, in the period before elections. This requires that the state should respect some basic rights of the citizen. They should be free to think, to have opinions, and to express these in public, to form associations, to protest, and to take other political actions. Everyone should be equal in the eyes of law. These rights must be protected by an independent judiciary whose orders are obeyed by everyone. We shall read more about these rights in chapter 6. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सफलता के लिए आवश्यक है कि चुनाव तो फ्री और फेयर हों और चुनाव के पहले और चुनाव के बाद की व्यवस्था है उसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। जो प्रेस है, जो अखबार है, मैगजीन है, उनको भी आलोचना का अधिकार हो और जो क्या है उसको भी स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने का अधिकार हो। तभी हम कह सकते हैं कि उस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि जो संविधान है उसमें जो चीजें स्पष्ट की गई हैं उनको भी वर्तमान सरकार के द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। भी लोकतांत्रिक सरकार उस देश के संविधान का विरोध, उसके नियमों का विरोध नहीं कर सकती। इस तरह से हम पाते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो अंतिम विशेषता है वो है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट्स। हमारे देश के संविधान में भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। तो कोई भी सरकार नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन सामान्य परिस्थिति में नहीं कर सकती। कंटिन्यू summary definition. Let us sum up the discussion so far. We started with the simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it. Through a series of examples, we worked out 4 features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which rulers elected by the people take all major decisions. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens' rights. हम अंत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो 4 विशेषताएं हैं उनको दोहराएंगे। पहला है कि जो शासक है, लोगों के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ही अंतिम निर्णय लेने का अधिकार हो। दूसरा, जो चुनाव है, जो रेगुलर इलेक्शन है, उसमें जो लोग हैं
उनको वर्तमान जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बदलने का मौका दिया जाए। तीसरा, जो लोग हैं उनको सबको समान अवसर दिए जाएं। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। और जो लास्ट है, अंतिम है, उसमें है कि जो सरकार है वो संविधान में निर्धारित जो कानून है, जो अधिकार हैं, उनका उल्लंघन वो सामान्य परिस्थिति में नहीं कर सकती। थैंक्स।